Hello, students. I once again welcome you back to this online video lecture series, and we have been doing the chapter The Third Level by Jack Finney. And in the last class, we had stopped on page number 5, and till now in the story, we saw how the main character, the protagonist, that is Charlie, he is trying to convince us of the fact that there is a third level at the Grand Central Railway Station. Okay, so he is a stamp collector. It is his hobby to collect stamps, and this stamp collecting hobby tells us, it shows us that he is interested in the past. जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं या कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो हॉबीज़ हैं, ये आपके पास्ट में इंटरेस्ट जो है उसको दिखाती हैं. ओके, सो वॉट एवर योर हॉबी इज़, इट टेल्स अ ग्रेट डील अबाउट योर साइकोलॉजी, इट टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर लाइक्स डिसलाइक्स. ओके, सो ये हॉबी जो है, इस हॉबी को देखते हुए हमें समझ में आता है कि चार्ली जो है वो पास्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, एंड ही ऑल्सो सेज that the past world was a peaceful world, okay, as compared to the present world in which he was living. So अभी तक स्टोरी में हमने क्या देखा, that Charlie is convinced of the fact कि एक थर्ड लेवल मौजूद है उस रेलवे स्टेशन पे, and he has also visited it. So in the last lecture I discussed with you his experience कि वो जब जाते हैं वहाँ पे तो उनको कैसे लोग दिखते हैं, उनको बिल्कुल ओल्ड फैशन लोग दिखते हैं, ओल्ड फैशन उनका सेंस होता है, ड्रेसिंग सेंस. ओके, उसके बाद जो गाड़ियाँ होती हैं, जो लोकोमोटिव्स है, ये सारे जो है वो बहुत 1800s लेट 1800s का पूरा जो सिनेरियो है वो उनको उस रेलवे स्टेशन के उस थर्ड लेवल पे दिखता है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड जो नॉर्मल इंसान बिलीव करने से थोड़ा पीछे हटेगा. नो, दैट डजंट एग्जिस्ट एनी दैट सॉर्ट ऑफ थर्ड लेवल जहाँ पे बिल्कुल पुराने ज़माने के लोग हमें दिखें, जहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर अलग दिखे, दुनिया ही अलग हो जाए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, दैट सडनली यू एंटर अ टनल एंड you enter into a magical world. Okay, so this is not something which people generally believe. एंड सो चार्ली को भी अपनी वाइफ को, लुइजा को, एंड अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये बात कन्विंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड दे आर सेइंग दैट चार्ली इज सिंपली ट्राइंग टू escape from the harsh realities of this world, whereas Charlie is telling that no, ऐसा कुछ भी नहीं है, he is trying to escape to nowhere, and this third level really exists. So he was telling us about his hobby. सो वी सी कि वो जब जाता है वहाँ पे तो उसको टिकट काउंटर दिखता है, और वहाँ पे वो ही डिसाइड्स दैट ही विल गो टू जालिसबर्ग in Illinois with his wife. So he goes to buy two tickets, and then over there he realizes that he has that money which is of no use in those times, in the year 1894, in which he has already reached at the third level. Okay, so the ticket checker at the counter, he is kind of frowning, and he is thinking that Charlie is trying to fool him. So Charlie वहाँ से चला जाता है. He hurries away from that place because he says that there is nothing good about the jail even in that year. Okay, a prison is always a prison. Okay, so we will continue from page number 5, second paragraph. And that was that. I left the same way I came, I suppose. So ये क्या बोलते हैं कि मैं जिस रास्ते से गया, मैं उसी रास्ते से वापस आया, जैसा कि इनको याद पड़ता है. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and brought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. तो ये क्या बोल रहे हैं, दैट ये जब वो उस वर्ल्ड से फिर वापस आ गए अपने रियल वर्ल्ड में, तो वो रियल वर्ल्ड में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया
उन्होंने अपने बैंक से मनी विथड्रॉ किया, जितना उनके पास पैसा था वो सारा उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, विद द आइडिया, विद द होप कि अब वो जब वापस थर्ड लेवल पे जाएंगे तो वो वहाँ पे वो इलिनॉइस गैलिसबर्ग का टिकट लेंगे और वो गैलिसबर्ग चले जाएंगे। ओके, सो ये उनके दिमाग में बिल्कुल फर्म फेथ है कि वो जाएंगे और वाकई में उनको थर्ड लेवल फिर से मिलेगा। सो वो अपना पूरा जो पैसा है वो एक्सचेंज कर लेते हैं और पुराने ज़माने के जो पैसे थे उस टाइम के वो खरीद लेते हैं। सो ही सेज कि अभी के जो पैसे की जो वैल्यू है वो पैसे की वैल्यू अभी वो हो गई है, कम हो गई है, इसलिए पहले के पैसे जो थे वो कम होते थे बट उनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी। सो ही लाइक एक्सचेंजेस ऑल हिज मनी, दैट इज समथिंग $300, एंड उससे उसको ओल्ड स्टाइल बिल्स कितने मिलते हैं 200, और वो उसको लेके रख लेता है विद दिस होप दैट ही विल गो अगेन टू द थर्ड लेवल एंड बाय द टिकट्स to his favorite place. But I've never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. So, अब क्या है कि ये उसके बाद जब ट्राई करते हैं थर्ड लेवल में जाने का तो उनको कभी भी थर्ड लेवल उसके बाद नहीं मिला। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ मिस्टीरियस पैसेज जो अब दोबारा उनके रास्ते नहीं आया, वो उस रास्ते नहीं गए। ओके, Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps. So जब इनकी वाइफ लुइसा को इस बारे में पता चला, इन्होंने जब बताया तो वो बहुत वरीड हो गई। क्यों? बिकॉज दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि मैं एक अलग दुनिया में चला गया, मैं अभी मार्स से होकर आ रहा हूँ, मैं प्लूटो जुपिटर से होकर आ रहा हूँ, अच्छा मैं अभी हेवन से होकर आ रहा हूँ, सो आप बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपका फ्रेंड बोले कि मैं अभी सुबह अमेरिका गया था, अभी लौटा हूँ, सो विल यू बिलीव? नो। सो ये सारी जो चीज़ें हैं थोड़ा हमारे बिलीव करने पे हमारे प्रॉब्लम होती है हमें। सो ऑल दीज थिंग्स आर वाई अनबिलीवेबल बिकॉज दे आर ऑफ अ डिफरेंट टाइम एंड स्पेस। ये जो टाइम एंड स्पेस का जो कंसेप्ट है हमारी लाइफ में, हमारी वर्ल्ड में, ये बहुत लीनियर है। ठीक है, हमारे हिसाब से टाइम सीधा चलता है, तो हम एक टाइम पे एक ही जगह हो सकते हैं, हम एक टाइम पे दो जगह नहीं हो सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम इतना जल्दी स्पेस में मूव नहीं कर सकते। ओके, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विच वी नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो दिस इज समथिंग विच वरीज हिज वाइफ, एंड वो क्या बोलती है कि तुम दोबारा इस चीज़ को नहीं खोजोगे। ओके, एंड इस थर्ड लेवल को नहीं खोजोगे, एंड ही ऑल्सो स्टॉप्स लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल आफ्टर दैट, एंड देन वो अपने स्टैम्प के जो कलेक्शन है उस पर अहमियत फिर से देने लगते हैं। ही गोज बैक टू दैट हॉबी। Okay, but now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Weiner disappeared. So ये क्या बोल रहे हैं? हमने देखना बंद कर दिया, बट अचानक से क्या हुआ, इनका एक फ्रेंड जिसका नाम था सैम वेनर, वो अचानक से डिसअपियर हो गया। वो कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं। सो एवरीवन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिम। ओके, सो इवन ही एंड हिज वाइफ दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिम, और अब उनको क्या लगता है कि सैम जो है वो थर्ड लेवल पे चला गया, क्योंकि वो इस दुनिया में कहीं मिल नहीं रहा है। सो वो थर्ड लेवल पे चला गया, एंड नाउ वी हैव टू सर्च फॉर हिम। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Jallisburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. So ये देखिए ये किस तरह से चार्ली बातों को रख रहे हैं। It is something which is mind boggling, जो हमको समझने में ज़रा दिक्कत होती है। He is telling us कि इनका जो फ्रेंड है वो कहीं नहीं मिल रहा है। सो ही इज श्योर ऑफ द फैक्ट कि सैम कहाँ गया है। ही हैज़ गॉन टू जैलिसबर्ग ऑफ 1894। और वो क्यों वहाँ चला गया? बिकॉज ये अब जैलिसबर्ग की बहुत तारीफ करते थे सैम से, और सैम को उस जगह के बारे में सुनना पसंद था, उसको उस जगह से लगाव हो गया था। सो ही इज श्योर नाउ कि सैम कहीं नहीं मिल रहा है। सो ही हैज़ डेफिनेटली एस्केप्ड फ्रॉम द ट्रायल्स एंड ट्रिवियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड ही हैज़ गॉन टू द मोर पीसफुल एंड अ मोर
hassle-free world that is Jalesburg of 1894. Because one night, fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. So ये क्या बोल रहे हैं कि इनको कैसे श्योर है इतना? How is he so sure that Sam has gone to that world? Because ये इनको कुछ इन्होंने डिस्कवर किया. क्या डिस्कवर किया? इनके स्टैम्प कलेक्शन में एक फर्स्ट डे कवर इनको मिलता है. व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर? अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई स्टैम्प नया इशू होता है तो जो स्टैम्प के शौकीन लोग होते हैं, जो उसके जो कलेक्टर्स होते हैं, जो जिनको उसमें इंटरेस्ट होता है, वो कुछ स्टैम्प्स खरीदते हैं पहले ही दिन और उनको एनवेलप्स पे लगा करके अपने ही नाम पे वो मेल कर देते हैं, ताकि वो उस डेट का स्टैम्प पहले दिन का वो उनके पास एक सॉर्ट ऑफ मेमोरी प्रिजर्व्ड रहे. ओके, सो ये स्टैम्प के शौकीन लोग करते हैं, जो कलेक्शन में शौक रखते हैं इसका. सो दीज पीपल, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर विच दीज पीपल कलेक्ट. सो इसके अंदर कोई मेल एज सच नहीं होता है, कोई लेटर नहीं होता है, ये बस ब्लैंक होता है क्योंकि लोग खुद को भेज रहे होते हैं. सो दे डोंट राइट एनीथिंग, बट उनको बस स्टैम्प चाहिए होता है विद द फर्स्ट डेट. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट डे कवर. तो उनको क्या मिलता है? चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन में एक फर्स्ट डे कवर मिलता है, बहुत पुराना. That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. तो इनको आपको याद होगा कि इनका जो स्टैम्प का कलेक्शन है ये इनके ग्रैंडफादर से इन्होंने इनहेरिट किया था. सो उनके टाइम के जो फर्स्ट डे कवर्स हैं वो सारे इनके पास हैं. ओके, सो इनको एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिलता है जो बहुत इनको मतलब चौंका देता है. But there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Jalesburg. That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. So what does Charlie say? Charlie says that he found something in the form of a first day cover, and this first day cover was sent to him, to his grandfather who was living in Jalesburg in those years, and the address on the envelope had the address of Jalesburg where they used to live, and the date was July 1894. So this is something जो हमको भी believe नहीं होता, that how is it possible, okay, that he is finding something very old and that is like addressed to his grandfather. अब उसके ऊपर जो है जो स्टैम्प है, उस स्टैम्प में प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर है. सो प्रेसिडेंट गारफील्ड जो थे वो बहुत पहले थे और वो गुजर चुके थे. सो दिस वाज डेफिनेटली अ वेरी ओल्ड फर्स्ट डे कवर, एंड व्हेन ही ओपनड दिस फर्स्ट डे कवर, जनरली फर्स्ट डे कवर्स में क्या होते हैं कि उसमें कोई लेटर नहीं होता, बट व्हेन ही ओपनड दिस वन, इसके अंदर से एक लेटर निकलता है. The paper inside wasn't blank, it read. तो जब पेपर ब्लैंक नहीं था तो ये इनको समझ में आ गया कि इनके ग्रैंडफादर को किसी ने ये भेजा था, उस फर्स्ट डे ही भेजा था. ओके, बिकॉज अगर वो ग्रैंडफादर खुद को फर्स्ट डे कवर मेल करते जस्ट टू प्रिजर्व द स्टैम्प, तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, इट वुड बी ब्लैंक, बट दिस हैड समथिंग रिटन ऑन इट. सो ही रियलाइज दैट दिस फर्स्ट डे कवर वॉज सेंट टू हिज ग्रैंडफादर बाय समबडी else. अब उसमें क्या लिखा था? 941 Willard Street, Jalesburg, Illinois, July 18, 1894.
Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I've been here 2 weeks, and right now, down the street at the Dallies, someone is playing a piano, and they're all out on the front porch singing, Seeing Nellie Home. And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. The note is signed Sam. So, how interesting. ये जो इनके पास जो लेटर इनको दिखता है, ये लेटर किसने भेजा था? सैम ने भेजा था. किस ईयर में? जुलाई 1894. सो इन अ वे सैम ने ये बहुत पहले भेजा था इनके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे. ओके, एंड वो अभी तक उनके कलेक्शन में है. और उसमें क्या लिखा है? इट इज़ एड्रेस टू चार्ली फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये चार्ली से बात हो रही है जिसने भी भेजा है. सैम ने चार्ली को भेजा है और उसने क्या लिखा है? आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट. ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? द डिस्कशन बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स अबाउट जैलिसबर्ग इलिनॉइस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल. जब चार्ली बताता था कि थर्ड लेवल होता है, मैं घूम कर आया हूँ, तो सैम जब सुनता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था. एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू द थर्ड लेवल एंड फ्रॉम देयर ही वॉन्टेड टू एस्केप इन टू द वर्ल्ड ऑफ जैलिसबर्ग. एंड नाउ अब वो वहीं पे है और वो वहाँ से लेटर लिख रहा है. वो क्या लेटर में लिख रहा है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट. मैं बहुत मेरे दिल अंदर चाहता था, इन माई हार्ट आई विश्ड दैट वॉट यू टोल्ड मी वॉज ट्रू, दैट देयर रियली एग्जिस्टेड अ थर्ड लेवल. देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट. पहले मुझे चाहत थी कि तुम्हारी बात सच हो, एंड देन आई बिलीव्ड कि तुम्हारी बात सच है, बिकॉज ऐसा वाकई में है. एंड चार्ली, इट्स ट्रू. आई फाउंड द थर्ड लेवल. मुझे थर्ड लेवल मिल गया. ओके, सो सैम खोज रहा था थर्ड लेवल और फाइनली उसको वो मिल गया. आई हैव बीन हियर 2 weeks. तो ये वहाँ पे 2 हफ्तों से है. And right now, down the street at Dali, someone is playing a piano, and they're all out on the front porch singing "Seeing Nellie Home." So, जो सैम है वो ऑलरेडी 1894 के जैलिसबर्ग में है और वो वहाँ से लेटर लिख रहा है और वहाँ के पूरे सीनरी को डिस्क्राइब कर रहा है कि लोग यहाँ पे पियानो पे सॉन्ग गा रहे हैं और इनको इनवाइट किया है किसी ने लेमनेड ड्रिंक पे. ओके, सो and what he says, I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. So, वो और क्या इनको बोल रहा है कि खोजते रहिएगा आप लोग, both you and your wife. Keep searching for this third level until you find it, because this world is completely worth the search. Okay? So, it is a kind of, बोल सकते हैं, a kind of signal that ये जो पीसफुल सी दुनिया है जिसको ये लोग सब खोज रहे थे वो फाइनली एक को मिल गई. एंड नाउ ही इज़ टेलिंग हिम द अदर पर्सन कि ये जो पीसफुल दुनिया है ये हम सब चाहते हैं और हम सब अगर उसको खोजेंगे तो इट विल बी कम्प्लीटली वर्थ इट. वी शुड ऑल लुक फॉर अ बेटर वर्ल्ड, फॉर अ मोर पीसफुल वर्ल्ड. ओके, सो ये लिटरली भी सही है और इमेजिनेटिवली भी सही है. इस दुनिया में भी हमको एक बेटर वर्ल्ड का सपना देखना चाहिए. ओके, एंड वी शुड ऑल स्ट्राइव टूवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड. अब वो वाकई में कोई एक कॉन्क्रीट वर्ल्ड है जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं जैसे कि इस स्टोरी में दिख रहा है, या वो यही दुनिया है जो हम अच्छा बना सकते हैं अपने एक्शन से, अपनी काइंडनेस से, अपने वर्च्यू से. सो ये 2 लेवल्स पे स्टोरी को हम समझ सकते हैं. ओके, एंड एट दिस स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर I go to, I found that Sam bought $800 worth of old style currency. फिर जब इनको ये मिलता है तो ये जाते हैं और वही उस स्टोर जाते हैं जहाँ पे मनी एक्सचेंज होती है. तो वहाँ इनको पता चलता है कि इनका जो फ्रेंड सैम था उसने क्या किया था, उसने $800 एक्सचेंज कर लिया था और पुराने पैसे ले लिए थे. Because he was completely prepared कि अब उसको थर्ड लेवल जाना है. That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. तो अब वो उस दुनिया में जा कर के कौन सा बिजनेस करेगा?
हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ये किसका बिजनेस होता है? फार्म का, एनिमल का, कैटल का, ठीक है। और ये सारे जो होते हैं ये चारा होता है जो जानवर खाते हैं, हे फीड एंड ऑल। सो ये जो बिजनेस है ये फार्म हाउस का बिजनेस ये करेगा सैम, ओके। He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Charlottesburg, Illinois in 1894. His old business? Why, Sam was my psychiatrist. Okay, and this is where the story ends. तो स्टोरी कहाँ एंड हो रही है? हमको चार्ली बता रहा है कि सैम ने पैसे एक्सचेंज किए और वो उस वर्ल्ड में चला गया, और वो उस वर्ल्ड में कौन सा बिजनेस करेगा? वो बिजनेस करेगा जो उसको बहुत दिनों से पसंद था, जो वो अंदर ही अंदर करना चाहता था। ही वॉन्टेड अ मोर पीसफुल बिजनेस जिसमें बहुत सुकून हो, और ये जो फार्म हाउस का जो बिजनेस होता है वो बहुत पीसफुल होता है, बहुत हैसल फ्री होता है। ऑब्वियसली सब बिजनेस के अपने अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू द रश ऑफ द न्यू वर्ल्ड जहाँ पे लोगों को पैसा कमाने का रश होता है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने प्रॉब्लम्स हैं, उसी जगह वो जो पुरानी दुनिया वो जो बीत गई है उस दुनिया में चीज़ें बहुत इजी थी, बहुत सिंपल थी, लोग फ्रॉडुलेंट कम थे, आसानी से लोग मेहनत करते थे और उनको सिंपल लिविंग, सुकून की ज़िंदगी उनकी होती थी। सो दिस सुकून की ज़िंदगी ये जो है ये इसको खोजने की चाहत में सैम वहाँ चला गया, एंड वो वही करेगा जो उसका बहुत दिन से मन था, ओके। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो काम इसलिए भी करेगा बिकॉज वो उस ओल्ड दुनिया में अपने इस दुनिया का प्रोफेशन नहीं कर सकता है। उसका इस दुनिया का प्रोफेशन क्या था? ही वॉज द साइकियाट्रिस्ट ऑफ चार्ली। सो इजंट इट फनी कि इनका जो साइकियाट्रिस्ट था जो बोलता था कि ये जागते हुए ख्वाब देख रहा है चार्ली, ही इज टेलिंग अबाउट थर्ड लेवल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इट इज़ हिज एस्केपिज्म, ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जो ये बात बोलता था वो खुद ही अब अलग दुनिया में जाकर रह रहा है, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी लूज एंड जहाँ पे स्टोरी एंड होती है। बहुत सारे इसके थ्रेड्स हैं, हम इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ओके। कि सैम वहाँ चला गया एंड ये वहाँ पे अपनी पुरानी न्यू बिजनेस नहीं कर सकता, वो वहाँ पे साइकेट्री नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बी अ साइकेट्रिस्ट इन दैट वर्ल्ड बिकॉज 1890s के टाइम पे साइकेट्री एज अ फील्ड, एज अ मेडिकल फील्ड ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। देयर वर नो साइकेट्रिस्ट उस टाइम, बस ये नई नई शुरुआत हुई थी साइकोलॉजी की, ठीक है। और साइकेट्री जो थी उस टाइम एग्जिस्ट भी नहीं करती थी एज अ मेडिकल फील्ड, एज अ प्रोफेशन, ठीक है। So all this is something that is left over us by the writer कि हम सोचें कि ये स्टोरी हमें कहाँ लेकर जा रही है, ओके। हम जो है टाइम को बिल्कुल लीनियर मोशन में देखते हैं कि टाइम कैसा है, उसका एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है, ठीक है, और इसको ही हम फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है, इस पैटर्न में कोई इंटरमिंगलिंग नहीं है, आगे पीछे नहीं है, ठीक है। बट इन दिस स्टोरी टाइम एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी में हमको दिखाया गया, ठीक है। टाइम एक अनबिलीवेबल एंटिटी हो गया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत मिस्टीरियस हो गया है, जहाँ पे लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया चले जा रहे हैं, अलग टाइम में चले जा रहे हैं, अलग स्पेस में चले जा रहे हैं, ओके। सो दिस इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस कैन बी सीन इन दिस स्टोरी, इसलिए इसको हम साइंस फिक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये इमेजिनेशन ही में हो सकता है, ये रियल में पॉसिबल हमको नहीं लगता है, ओके। So we will discuss more about the chapter in the next video lecture, and we will also discuss the question answers that are given at the end of the chapter. So keep pondering over the chapter, read the chapter, and we will talk more about it in the next video lecture hopefully. So until then, thank you and see you.